ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ سب خاموشی سے پاک کلام کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 35ویں سے 38ویں آیت۔ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ دیکھ تیری رشتہ دار الیزابت کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سب تشریف رکھیں گے۔ مسیح خدا نے میرے عزیزو، آج ہم سب خداوند کا شکریہ بجا لاتے ہیں ایک دفعہ پھر سے کہ اس نے ہمیں سنبھالا، محفوظ رکھا اور یہ موقع دیا کہ ہم ایک دفعہ پھر اس کے قدموں میں آ کر، ایک دفعہ پھر اس کے گھر میں آ کر، ایک دفعہ پھر اس کی میز کے چوگرد آ کر سب سے پہلے اپنی دعائیں، التجائیں، مناجات، عرضیں اور گزارشیں خدا کے حضور میں رکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد مقدسہ مریم ہم سبوں کی ماں اور خدا کی ماں کی آج تعظیم کر سکیں۔ اور یہ بات مقدسہ مریم کی تعظیم میں آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا، ہمارا اکٹھا ہونا، یہ بھی بائبل ہی میں سے ہے، کیونکہ خدا نے جب مقدسہ مریم کو روح القدس سے معمور کیا تو اس نے کہا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے؟ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے؟ جو پاک کلام پر عمل کرتا ہے اور پاک کلام کی باتوں کو جانتا ہے، وہ میرے ساتھ ایک دفعہ اونچی آواز سے مقدسہ مریم کے الفاظ دہرائے گا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے، مبارک کہیں گے۔ اور یہ بات جو مقدسہ مریم نے آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے کہی، آج ہم اپنی آنکھوں کو برکت شدہ سمجھتے ہیں، آج ہم اپنی زندگیوں کو برکت شدہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج بائبل مقدس کی اس آیت کو جو مقدسہ مریم نے روح القدس کی زبانی کہیں بائبل مقدس میں ہزاروں سال پہلے، آج ہم اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور جس طرح مقدسہ مریم نے کہا کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، تو ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، ہم سب یہاں پر مبارک لوگ ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ زندگیاں جو خداوند کے پاک کلام پر عمل کرتی ہیں، اور اسی کے عمل شدہ ہم پاک کلام سے آج ہم اپنی زندگیوں کو بابرکت بنائیں گے، مقدسہ مریم ہی کے طفیل سے، جب آج ہم مقدسہ مریم کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ آج جب ہم مقدسہ مریم کی تعظیم میں جب یہاں پر جمع ہیں، تو آج کا جو عبادت کا موضوع تھا وہ تھا صندوق شہادت، عہد کا صندوق، جس کو انگلش میں دی آرک آف دی کووننٹ کہتے ہیں۔ اور اس صندوق شہادت
शहादत की अहमियत, संदूक शहादत का काम, संदूक शहादत की बरकत को आज हम मुकद्दसा मरियम के तुफैल से देखेंगे कि क्यों मुकद्दसा मरियम को नए अहद का संदूक, संदूक शहादत या द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट जो है वो कहा जाता है। क्यों मुकद्दसा मरियम के लिए ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए। यूं तो मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम में पुराने अहदनामे में हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं, बहुत से ऐसे नाम मिलते हैं जो मुकद्दसा मरियम के नाम से मंसूब किए जाते हैं। मसलन याकूब की सीढ़ी भी मुकद्दसा मरियम को कहा जाता है। उसके बाद जलती झाड़ी भी मुकद्दसा मरियम को जो है वो कहा जाता है। लेकिन आज का मौजू जो यहाँ की कलीसिया ने फादर साहब ने तो फैल जो है मुकर्रर किया, मुकद्दसा मरियम को संदूक शहादत क्यों कहा जाता है, आइए उसके बारे में हम जाने, उसके बारे में हम सीखें और उसी अहद के संदूक के वसीले से कि जिसको मुकद्दसा मरियम को नए अहद का संदूक जो है वो कहा गया है, उसके वसीले से बरकत पाएं। मेरे चीजों, इसके लिए जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो, अगर नहीं तो घर जाकर खरूज की किताब उसके 25वें बाब से लेके 40वें बाब तक खुदा खुद मूसा को और बनी इस्राएल कौम को कहता है कि मेरी हजूरी के लिए, मेरे ठहराव के लिए, मेरे मस्कन के लिए एक जगह को तैयार करो जिसमें आकर मैं क्या कर सकूं, रह सकूं, जिसमें मेरी रूह जो है वो रह सके, जिसमें मेरी हजूरी ठहर सके, जिसमें मैं आप लोगों के साथ साथ जो है वो चल सकूं। और जब खुदा जो है वो अहद के संदूक को बनाने का हुक्म बनी इस्राएल कौम को, मूसा को जो है वो देता है, तो वो कहता है कि अहद के संदूक को संत की लकड़ी से, 25वें बाब खरूज की बात कर रहा हूं, संत की लकड़ी से उसको बनाना। अभी संत की लकड़ी से खुदा ने इसलिए उसको बनाने का हुक्म दिया क्योंकि वो लकड़ी ऐसी है जो कभी भी खराब नहीं होती, उसको कोई कीड़ा जो है वो नहीं खाता, उसको कभी किसी किस्म का जो है वो नुकसान नहीं भेजा, वो पायदार है और हमेशा तक जो है वो चल। खुदा कहता है कि तू संत की लकड़ी से जो है एक बॉक्स जो है, एक बक्सा जो है वो तैयार करना और उसको सोने से मुज़य्यन करना, 2 करोबी बनाना, एक दाएं और एक बाएं, और उसको सोने से जो है वो मुज़य्यन करना। और उसके बाद बनी इस्राएल कौम जब मूसा के वसीले से, हजरत मूसा के वसीले से संदूक शहादत को, अहद के संदूक को बना चुकी होती है, तो खरूज की किताब उसके 40वें बाब में, याद रखिएगा, अगर जाके आप मुताला कर सकते हैं, खरूज की किताब उसके 40वें बाब में लिखा है कि जब संदूक का काम मुकम्मल हो गया, उसकी तज़ीनो आराइश जो है वो मुकम्मल हो गई थी, तो लिखा है कि मूसा ने अहद के संदूक को खड़ा किया और बादल गरजा और खुदा की हजूरी जो है वो मस्कन में आकर ठहर गई। खुदा की हजूरी मस्कन के ऊपर आकर अहद के संदूक में जो है वो ठहर गई। और मेरे चीजों, उस संदूक का काम जो है उसके मोजज़ात बहुत ज्यादा थे। बनी इस्राएल कौम जब भी जंग के लिए कहीं जाती थी तो अहद के संदूक को साथ लेकर चलती थी, अहद के संदूक को साथ लेकर चलती थी। और जब भी लिखा है कि वो अहद के संदूक को किसी जंग में लेकर गए, उनको फतह नसीब होती थी, वो फतह याब होते थे, क्योंकि अहद का संदूक खुदा जो है उनके साथ है, खुदा उनके साथ साथ जो है वो चल रहा है। और जब मस्कन उन्होंने बनाया अहद के संदूक को, तो बनी इस्राएल कौम उसमें 3 चीजें रखती थी, 3 चीजें अहद के संदूक में रखी जाती थी। मेरी आप मदद करेंगे, कौन कौन सी चीजें, क्या आपको याद है? किसी को याद है कौन कौन सी चीजें अहद के संदूक में रखी जाती थी? कौन कौन सी चीजें? पहली मैं आपकी हेल्प करता हूं, शहादत की दौलों में 10 काम जिसको हम कहते हैं। दूसरी चीज कौन सी रखी जाती थी? आसमान से एक रोटी बरसती थी, जिसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मन कहा जाता था। वो रोटी भी अहद के संदूक में रखी जाती थी। तीसरी चीज कौन सी थी? ये बातें तो याद नहीं चली, पुराने अहद के संदूक में था। 2 चीजें मैंने आपको बताई, तीसरी चीज कौन सी है?
तीसरी चीज थी हारून का असा। हारून का असा, जिससे वाज़ेह होता है कि हारून को और उसके बेटों को जो कहानत की बरकत खुदा ने दी थी, वो जो है वहां पर रखा जाता था। अभी दोबारा मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, इन तीनों चीजों को मैं आपसे फिर पूछूंगा, अभी नहीं बाद में। याद रखिएगा, ऐद के संदूक में 3 चीजें रखी गई थी, मेरे साथ हो रहिएगा। पहली जो है वो 10 अहकाम शहादत की तौलों में। दूसरी चीज कौन सी मैंने बताई है? कौन सी? मन, जो रोटी आसमान से गिरती। और तीसरी असा किसका? हारून का। ये तीनों चीजें याद रखिएगा मेरे दोस्तों। जब खुदा की हजूरी खरूज की किताब उसके 40वें बाब में आकर उस मस्कन में उस ऐद के संदूक पर जो है वो ठहर गई, तो बनी इस्राएल कौम जब भी जाती थी ऐद के संदूक को साथ साथ लेकर चलती थी। और जब ऐद के संदूक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता था, तो उस पर कपड़ा होता था नीले रंग का। उस पर नीले रंग का कपड़ा चढ़ाकर उसको यहाँ से वहां जो है वो लेकर जाया था। और वादा की सरजमीन में जो पहली चीज पहुंची थी वो कौन सी थी? वो भी ऐद का संदूक ही था। 12 कायनों के साथ जब यहोशुआ की किताब में हम पढ़ते हैं, तो ऐद का संदूक तो सबसे पहली चीज है जो वादा की सरजमीन, जो मूसा ने जो है वो देखा था नबू के पहाड़ पर, वहां पर जो है वो पहुंचा था। और इसके बाद जब वादा की सरजमीन में पहुंच गया, तो आज की पहली तिलावत अगर आपने गौर से सुनी है, दूसरे सैमुएल में से जो ली गई, दाऊद को जब खबर दी जाती है कि ऐद के संदूक को यरूशलेम में लेकर आया जा रहा है, तो दाऊद जो है वो घबराता है और वो कहता है कि मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि खुदावंद का संदूक, खुदा जो है वो मेरे पास आएगा। क्यों मेरे लिए ये बात है कि खुदा जो है वो मेरे, और इस वजह से कि वो डर गया। वो एक अबदूम हमें एक आदमी का बताया जाता है, उसके घर में रख देता है, और उसके घर में ऐद का संदूक कितनी देर पड़ा रहा? 3 महीने तक। याद, ये बातें आपसे मैं फिर पूछूंगा, इसीलिए कह रहा हूं बातों को याद रखिएगा। यदूम के घर जो है वो ऐद का संदूक 3 महीने तक जो है वो पड़ा रहा। और इसके बाद जब 600 साल खुदावंद यीशु मसीह से पहले जब बाबुल की असीरी आई थी, वहां पर लिखा है कि जब उन्होंने बनी इस्राएल कौम के सारे घरों को जो है वो रौंद दिया, उनको मिटा दिया, इसके साथ साथ उन्होंने हैकल को भी जो सुलेमान ने बनाई थी, और वहां पर जो है जितनी भी चीजें थी उनको नेस्त और नाबूद कर दिया था, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया था। उसके बाद ऐद के संदूक जो है वो हमें नजर जो है वो नहीं आता कि ऐद का संदूक जो है वो कहा गया। लेकिन ये बात हम पर खुलती है, अगर आपके पास कैथोलिक ट्रांसलेशन बाइबल है, तो दूसरा मकाबीन उसका दूसरा बाब और 4 से लेके 8वीं आयत, इसकी तिलावत मैं आपके सामने करूंगा, क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही जो है वो जरूरी है। पढ़ने लगा हूं मैं आपके सामने दूसरा मकाबीन 2 बाब उसकी 4थी आयत। लिखा है, हम यहाँ पर यिर्मयाह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त यिर्मयाह जो है वो नबी और काहिन जो है वो वहां पर मौजूद था। लिखा है कि इस तहरीर में आया है कि नबी ने उस वही से जो नाज़िल हुई हुक्म दिया कि मस्कन और संदूक यानी संदूक के शहादत उसको साथ लेकर चढ़े। और जब वो उस पहाड़ पर चढ़ने लगे जिस पर चढ़कर हजरत मूसा ने वादे की सरजमीन को देखा था, तो क्या हुआ, उसके अंदर एक गार को पाया। और यिर्मयाह ने क्या किया? यिर्मयाह ने वहां पहुंचकर एक गार को पाया और वहां पर मस्कन को और संदूक को वहां पर जो है वो रख दिया। और ये भी आगे लिखा है कि कुछ लोगों ने यिर्मयाह नबी का पीछा भी
यीशु मसीह को नया आदम कहा जाता है और मुकद्दसा मरियम को नई हवा भी जो है वो कहा जाता है। अभी खुदा के कलाम में हम सीखेंगे कि वो बात जो यिर्मयाह नबी ने कही कि जब तक खुदा अपनी उम्मत को दोबारा फराहम ना करे, और इसका हमें जिक्र मिलता है आज की इंजील मुकद्दस में। जैसे मैंने आपको बताया कि जब करूज की किताब 40वें बाब में जब खुदा ने ऐद के संदूक में आना था तो लिखा है कि वहां का जो जितना भी माहौल था वो खुदा की हजूरी से क्या हुआ, भर गया, खुदा की हजूरी से भर गया। और यही हुआ जब हम लूका की इंजील उसके पहले बाब की तिलावत में आज देखते हैं। जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उसको क्या कहता है कि रूहुल कुद्स तुझ पर क्या होगा, और आगे क्या लिखा है कि हक ताला की क्या होगी, कुदरत तुझ पर। जिस तरह अहद के संदूक के ऊपर बादल ने बनाया, उसका साया आया, उसी तरह मुकद्दसा मरियम को जिब्राइल फरिश्ता क्या कहता है कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, साया डालेगी, तुझ पर साया डालेगी। मेरे चीजों, खुदा ने मुकद्दसा मरियम को चुना, खुदा ने मुकद्दसा मरियम को चुन लिया ताकि मुकद्दसा मरियम जो बेऐब थी, लिखा है कि मुकद्दसा मरियम ने कहा ये सब मेरे लिए कैसे होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। यानी मुकद्दसा मरियम बेदाग कवारी, उस पर लिखा जा रहा है, उसको चुना है खुदा ने, और लिखा है फरिश्ते ने कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। यानी यिर्मयाह नबी की वो बात कि जब तक खुदा जो है अपनी उम्मत को दोबारा अहद का संदूक ना दिखाए तब तक ये जगह जो है वो किसी के इल्म में नहीं आएगी। तो अभी मुकद्दसा मरियम जो है वो नए अहद के संदूक, नए अहद का शहादत का संदूक जो है वो हमारे सामने लेकर आती है। और आज की पहली तिलावत में और आज की जो इंजील मुकद्दस से आगे हुआ, जब मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के पास जाती है तो लिखा है उसी तरह जब मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के घर में गई तो जिस तरह सैमुएल ने कहा कि खुदावंद का मस्कन या खुदावंद का संदूक क्यों मेरे पास आया, जब मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के घर में गई, कोहस्तान में गई, तो मुकद्दसा एलिज़ाबेथ ने क्या कहा था, मेरे लिए ये बात कैसे मुमकिन हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, खुदावंद की माँ मेरे पास आई। और ये भी लिखा है कि जब यरूशलेम में दाऊद जो है वो खुदा के मस्कन को, शहादत के संदूक को लेकर आया था, तो दाऊद क्या कर रहा था, उसके आगे क्या कर रहा था, दाऊद उसके आगे क्या कर रहा था, नाच रहा था, वो उछल कूद कर रहा था। और लिखा है मुकद्दसा मरियम ने जब एलिज़ाबेथ को सलाम किया तो यूहन्ना इसबागी क्या हुआ, उसके बदन में क्या हुआ, उछल पड़ा, यानी वो भी नाचने लग गया कि खुदा का मस्कन, खुदा के शहादत का संदूक जो है वो मेरे पास आया है, वो मेरे करीब आया है, हमारे घर में आया है। और पहली तिलावत में सैमुएल नबी दूसरी किताब उसके 6 बाब में इदूम के घर अहद का संदूक कितने महीने तक पड़ा रहा था, कितने महीने तक, और मुकद्दसा मरियम मुकद्दसा एलिज़ाबेथ के घर में कितने महीने रही, कितने महीने रही, कितने महीने, 3 महीने तक रही, 3 महीने। ये नहीं कहते कि यूहन्ना इसबागी की विलादत, बल्कि ये लिखा है कि 3 महीने तक वो अहद का संदूक, मुकद्दसा मरियम जो अहद का संदूक है वो वहीं पर रहा। आपके पास बाइबल मौजूद है, नहीं तो घर जाकर देखिएगा मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत की पहली आयत, मुकाशफा की किताब 11वां बाब उसकी 19वीं आयत और मुकाशफा ही की किताब 12वां बाब उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। लिखा है कि खुदा की हैकल में आसमान खुल गया और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया। फिर से पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिए। लिखा है कि खुदा की हैकल में, यानी पाक तरीन मकाम में क्या हुआ, हैकल में उसके अहद का क्या हुआ, संदूक नजर आया। और फिर वही जो करूज की किताब में हुआ
पांव के नीचे चांद और सर पर क्या था? 12 सितारों का क्या था? 12 सितारों का ताज था। वही अहद का संदूक, वही शहादत का संदूक जिसको हमने बनी इस्राएल कौम के कुछ दिनों में पढ़ा, उनके वाकयात में पढ़ा, पुराने अहदनामे में पढ़ा, उसी अहद के संदूक को अब खुदा जो है वो अपने पाक तरीन मकाम में, जो होली ऑफ होली, जो सबसे पाक तरीन मकाम है, अपने तख्त के सामने जो है वो बोलता है कि खुदावंद के अहद का संदूक जो है वो नजर आया। अभी खुदा के कलाम में जब हमने सीखा कि संदूक शहादत या अहद के संदूक में बनी इस्राएल कौम कितनी चीजें रखी, तो आपको याद होगा कितनी चीजें थी? इधर से बात है, कितनी चीजें थी? पहली कौन सी थी? पहली तो 10 काम, दूसरा मन, नाइस, और तीसरा वेरी गुड, यानी शहादत की दो है मन और हारून का असर। मेरे चीजों अभी इसी को हम नए अहदनामे की जो मुकद्दसा मरियम है उसमें पूरा हुआ देखते हैं। पहली चीज कौन सी आपने मुझे बताई है कि संदूक में 10 एहकाम, यूहन्ना की इंजील में लिखा है वही एहकाम, वही कलमा। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत, और कलमा क्या हुआ? मुजस्सम हुआ और हमारे क्या हुआ? हमारे दरमियान। उसी तरह जिस तरह अहद का संदूक या संदूक शहादत बनी इस्राएल कौम के दरमियान फिरता था, और फिर उसी शहादती लोगों को, उसी शरीयत को खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में क्या कहा कि ये ना समझो कि मैं सहायते अंबिया और शरीयत को मंसूख करने आया हूं, मंसूख नहीं बल्कि उनको बल्कि क्या उनको, यानी खुदावंद यीशु मसीह वो कलमा है कि जिसने 10 काम को क्या किया? मुकम्मल किया, उनको पूरा किया और सिखा दिया कि शरीयत सिर्फ 2 हुक्मों में समाई जाती है। पहला हुक्म कौन सा है? कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से प्यार करे, और दूसरा हुक्म जो इसी की तरह है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार करे। ये 10 काम जो खुदा ने उसमें रखे शहादत के संदूक में बनी। सब दूसरी चीज कौन सी थी? दूसरी चीज कौन सी थी? मन। मन कहां से बरसता था? आसमान से। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी आयत नंबर 51 में खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि मैं वो जिंदा रोटी हूं जो कहां से उतरी हूं? मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। आसमान की रोटी को रखने के लिए जब मन था, उसको रखने के लिए एक प्लेस, एक जगह तैयार की गई थी, शहादत का संदूक। तो वो कलाम, वो रोटी जो आसमान से उतरी थी, उसको रखने के लिए भी तो जगह चाहिए थी ना, तो वो थी मुकद्दसा मरियम का बर्तन, जिसको नए अहद का संदूक जो है वो कहा जाता है। और तीसरी चीज कौन सी थी? कौन सा? असा, हारून का असा। और मेरे चीजों वो असा जो खुदावंद यीशु मसीह की अब्दी कहानत का जो है वो निशान है। खुदावंद यीशु मसीह जो अब्दी बादशाह है, अब्दी कायम है, हमेशा तक जो है वो कायम रहेगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसी असास को जब हम बनी इस्राएल कौम की जिंदगी में और अपनी जिंदगी में देखते हैं, तो वही असास हमारी जिंदगियों में भी जब खुदावंद यीशु मसीह आता है, तो वही असास हमारी जिंदगियों में बरकत का बायस होता है। तो आज मेरे चीजों हमने उस अहद के संदूक को जो मुकद्दसा मरियम है, जो मुकद्दसा मरियम हकीकतन अहद का संदूक, और मुकाशफा की किताब में मैंने आपको बताया कि अहद का संदूक कहाँ है? अभी खुदा के पास पाक तरीन मकाम में, वहां पर जो है वो मौजूद है। वहां पर मुकद्दसा मरियम खुद जो है इन तीनों चीजों को लेकर जो है वो खड़ी है, इन तीनों चीजों के साथ जो है वो खड़ी है। और हम जो यहाँ पर आज खुदावंद यीशु मसीह के जरिए उसकी माँ की और अपनी माँ की ताज़ीम करने के लिए जमा हुए हैं, आइए हम भी बनी इस्राएल कौम की तरह उस अहद के संदूक की ताज़ीम करें, उस अहद के संदूक को अपने साथ साथ लेकर चलें, उस अहद के संदूक को अपनी अपनी जंगों में, भले वो रूहानी तौर पर हो, भले वो जिस्मानी तौर पर हो, भले वो किसी तरीके की जंग हो, अगर अहद का संदूक आपके साथ है तो याद रखिए फतह आपकी होगी। अगर वो अहद का संदूक आपके साथ है तो
खुदा कभी भी